जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए जब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम। थैंक यू। Request our honored director sir to show us his blessing. जय हिंद। भारत माता की जय। Today, on the eve of annual declamation contest of the Institute, I, as the director, feel elated to see you marching ahead in the world of expression and the world of real personality development. Now we are coming across a word that we always have heard today, that is independence or independent. But the question I ask everyone, and the first question I ask myself, am I independent or are we independent? What is independence? The definition of independence has changed since independence in 1947. The country became independent and everybody is free to practice his own thoughts, life, religion, occupation and everything. But I don't think we are independent. We are slaves. We are basically slaves. We are enslaved from within. And just to come here every day and just to go out walking, we had a nice day, we had a nice speech, we had a nice, say, snacks, refreshments, time. No. I think we must be independent. Now, independent means free from slavery. I was hearing somebody's declamation speech, I guess Piyush. He said slavery from servanthood, slavery from everything. We should try to do one's duty ourselves. But is this the only definition of independence that we should know? Is it the only independence? Independence means, in my view, and what I have learned from the great people and even the practical experience in this mundane world, that independence, is whatever creative, whatever right outness that your laws or your religion or your belief system allows you
you should do it without any hindrance. Like if I wish to have 5 rasgullas and the 5 rasgullas do not spoil my health, I should be having money or resource or capacity of my body so that I can digest 5 rasgullas. I should have money for 5 rasgullas and I should spare that physical body resource, maybe of digestion, maybe of any other metabolic activities that should not disturb my system. So this I would say is independence in that extent. And if I need something, some facility to be created for my family, for my society, I am independent if I can afford that. अगर मैं कुछ भी खरीद सकूं, कुछ भी इंतजाम कर सकूं जो सामाजिक, नैतिक, धार्मिक मापदंडों पर अनुचित ना हो और उस काम को करने की मेरी क्षमता रहे, मैं किसी पर आश्रित न हूं, तो मेरे ख्याल से तभी मैं स्वतंत्र हूं। अन्यथा मैं स्वतंत्र नहीं, गुलाम। Bill Gates says, if you are born poor, it is your fault. But if you die poor, it is not your fault. We have talked about many personalities. They all come from simple background and they have made a place where after decades of their death, we are reciting their speeches. We are declaiming their speeches. So, to be independent, you should not be dependent. Now, dependent for whom? Dependent for what? There are duties assigned in our dharma. If I quote Hindu mythology, I know something about Hindu mythology, so I think I can quote. So there we have seen there are 4 parts in which a life has been defined. The first one is we get education. The second one is we get a family and we lead that life. The third one is we do all the mundane affairs, and the last one is our retirement. When seeing the series of Mahabharata and Ramayana, I saw there was a terminology, Vaniprastha. सब काम जब आपका हो गया, you should retire और जाके वन में रहिए. Even the Rajas, Maharajas, when they left the so-called mundane Mayavi world and they housed themselves in jungle with limited or no facility. That was a phase of detachment. और इस डिटैचमेंट के पहले अटेनमेंट बनाना पड़ता है, और उस साम्राज्य को बनाने के बाद सडनली आप उसको छोड़ के चले जाते हैं। पूरी जिंदगी जिसको बनाया और उसको छोड़ के डिटैच होके निकल जाते हैं। मे बी आई हैव हर्ड द वर्ड्स माया मोह से दूर। तो टू बिकम समथिंग you have to be independent. You have to be independent. अब independent for people, every independent for different kind of people are different ways, are of different kinds. So how one becomes independent? Independence for a student is what?
Independence for a student, I have some simple points. Independence for students are कि किसी की गुलामी ना हो। स्टूडेंट्स अपने तृष्णाओं की गुलामी करते हैं, अपनी बुरी आदतों की गुलामी करते हैं। पहली गुलामी होती है आलस। पहली गुलामी है आलस। आई कम अक्रॉस स्टूडेंट्स, सर सवेरे नहीं उठ पाए, सर खाना ये नहीं खा पाए, सर ऐसे तैयार नहीं हो पाए। तो यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू फील दैट यू आर अ स्टूडेंट। आप गुलाम हैं अपने बैड हैबिट्स के, अपने रूटीन के। तो इफ यू टेक अवे और मंत्रा, द फर्स्ट इज कि दिस डे वी शुड प्लेस कि हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे और डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपनी पहली बुरी आदत जिसको कहते हैं आलस। दूसरी बुरी आदत होती है कि हम लोग अपने स्वभाव से बंधे होते हैं। ये सबके लिए है, नॉट फॉर स्टूडेंट, इसलिए हम ये नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं। यहाँ तो इस दुनिया में ओनली द परमात्मा डिसाइड्स कि आप क्या कर सकते हैं। रामचंद्र जी जैसे राजकुमार और राजा जंगल में भटकते हैं, और इफ वी कम टू मॉडर्न टाइम्स वी आल्सो हैव द सेम फेट, we do also have the same fate, we always have the same fate amongst us. How can one challenge or how can one say कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं खा सकते हैं। गांधी जी सालों जेल में बिताए, पंडित जवाहरलाल नेहरू और फ्रीडम फाइटर्स बड़े परिवार के लोग थे, नेहरू जी जेल में बिताए, एक छोटे से सेल में रहे। Everyone, where can you say? अपने चीजों को छोड़ के, सो दूसरी बड़ी दिक्कत होती है कि we have कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं। दिस करना नहीं करना, it decided by the Almighty and your faith, तुम्हारे भाग्य में क्या है। The third is you have a monopoly of slavery. तुम नौकर हो, तुम गुलाम हो अपने मोबाइल। आज का स्टूडेंट को सबसे बड़ी स्लेवरी है, गुलामी है मोबाइल फोन। लोग उसको कहते हैं एडिक्शन, नशा, मैं कहता हूं गुलामी। हम लोग बैठे बैठे एक डिवाइस के कारण ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल वर्ल्ड जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो वो मोबाइल के एप्लीकेशंस, शॉर्ट्स, वीडियोस एक्सेट्रा बनाने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को बेचने के लिए, टू सेल देयर प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को डाल देते हैं। और हम लोग मैनियक हैं, हम लोग हीरोइज्म में बिलीव करते हैं, हमारे गॉड भी हीरो हैं। हमारे माइथोलॉजी के गॉड सुपरमैन, ही कैन डू और शी कैन डू एवरीथिंग। तो हम लोगों को ये सीखना भूल गए कि वो आम आदमी से देवता बनने के लिए हजारों साल की तपस्या वो भूल गए। और हम लोग सोचे बस एक पार्ट को कि वो 10 हाथ की दुर्गा जी है, बट दुर्गा जी को 10 हाथ और 10 शस्त्र दिया किन लोगों ने, ये कोई नहीं पाता है, ये कोई नहीं जानना चाहता है। लोग सोचता है वो आई, एक हाथ से इसको कर दी, एक हाथ से ये मिराकिल कर दी, हम भी दुर्गा जी बन गए, हम भी हनुमान जी बन गए। बट इतनी सारी शक्तियां मिलके उनको उनमें शक्ति डाला गया और तब दुर्गा जी प्रकट हुई सभी की शक्तियों से। तो हम लोग उन वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और अपने आप को उस मिडिल में रख के, और हम लोग सोचते हैं कि हम सुपरमैन और सुपर वुमन बन गए। तो हमको अगर किसी को करियर बनाना है, बड़ी अच्छी बात है। करियर का भी एक दिक्कत है, सक्सेस को पैसे से लोग जोड़ते हैं और सक्सेस को सभी बड़े लोगों ने कहा है हैप्पीनेस से जोड़ने।
नॉट पैसे, क्योंकि पैसे का तो अंत ही नहीं है। और लक्ष्मी चंचला है, आज आपके यहाँ है, कल मेरे यहाँ है, परसों उनके यहाँ है। उनकी सवारी तो उल्लू है जो अंधेरे में काम करती है, पता नहीं किधर जाती है। रावण का लंका सोना से छाड़ा हुआ था, तो लंका है, सोना किधर है मुझे नहीं दिखा, हजारों साल से लोगों को नहीं दिखा। कुबेर विराजते थे वहां, धन के देवता कहाँ है? न रावण रहे और न कुछ। तो अगर हैप्पीनेस है, अगर हैप्पीनेस है तो सक्सेस है। और तो हम लोग गुलामी कर रहे हैं गैजेट्स की, अपने मानसिकता की, और दूसरे पर आश्रित होते जा रहे हैं, दूसरे रिसोर्सेस पर। The third thing, the fourth part which I would like to comment on, कि हमारे पास गुलामी से निकलने के लिए अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया में था, और एक सिस्टमेटिक रिएक्शन हुआ हमारे देशवासियों में। सिर्फ चंद नाम का ही नहीं है जो लोग, जिन लोगों ने गुलामी से हमको आज़ादी की ओर ले गए। ये कम्युलेटिव वर्क जो एक साथ एक एक करके ये चेन रिएक्शन की तरफ आ रहा है। तो हम लोग सबों को एक सिस्टमेटिक वे ऑफ लाइफ में लाना होगा। इस देश ने डिसिप्लिन को शायद विद्यार्थियों में भुला दिया। यहाँ नंबर को सक्सेस से जोड़ते हैं और ज्ञान खत्म हो रहा है। तो मैं याद दिलाऊं कि अगर आप सवेरे उठते हैं तो यू मस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि आप क्यों कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं। वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ अ सिस्टम जिसको आज का प्रेजेंट एजुकेशन, कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन सिस्टम, जिस सिस्टम के तहत हम लोग ऑन आज 24 घंटा का शेड्यूल हो गया, कल 24 घंटे का शेड्यूल हो गया। 99% बच्चे आते हैं और कहते हैं सर होमवर्क हो गया, पढ़ाई हो गई। इवन मेरे बच्चे कहते हैं, बट वो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो आपकी होगी जो आप स्वयं करेंगे। ये पढ़ाई तो पढ़ाई ही नहीं, ये तो आप कोचिंग की पढ़ाई किए, स्कूल की पढ़ाई किए, उसकी पढ़ाई किए, इसकी पढ़ाई किए। तो आपको एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। और टू कोट स्वामी विवेकानंद, उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ 33 करोड़ हिंदू देवी देवता है कि 33 लाख, आई डोंट रिमेम्बर राइट। उन्होंने कहा इस देश की आबादी अभी 30-35 करोड़ के आसपास है। तो धर्म को उन्होंने परिभाषित किया वे ऑफ लाइफ। तो जितने लोग उतना धर्म होना चाहिए। तो आपका भी अपना सिस्टम होना चाहिए। हम लोग सवेरे उठ के फ़ोन में डिपेंड करते हैं, हम लोग सवेरे उठ के दोस्त क्या ले रहा है, वो क्या कपड़ा पहन रहा है, वो कौन से बाइक पर चल रहा है, ये डिसाइड किया। तो हम तो गुलाम हैं। और महात्मा गांधी का पूरा व्यक्तित्व सिर्फ एक बात को सिखाता है कि हम इंडिपेंडेंट। उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी पहला लाइन कहा कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हमें किसी की जरूरत क्या है, किसी नमक। साउथ अफ्रीका में भी हम लोग सब लोग एक सिटीजन हैं, हमारे लिए 2 लोग हैं। और यही चीज उनके दिमाग में उनको डिस्टर्ब किया, और दैट मेड मोहनदास करमचंद गांधी टू महात्मा गांधी टू फादर ऑफ द नेशन। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ कहाँ गुलाम हैं और उस गुलामी से बाहर कैसे निकलें। झंडा फहरा देना, भारत माता की जय बोल देना, चिल्ला चिल्ला के वंदे मातरम बोल देना, और बाकी सभी चीज़ों पर फ्रीडम फाइटर्स को याद कर लेना, फिल्में देख लेना, जोश में भर जाना, आज सोचना कि आज हम भी बॉर्डर पर आए तो 2-4 को टिका ही देंगे। हो गया इंडिपेंडेंस, हो गया रिपब्लिक।
गाना बजा देना, आई डोंट थिंक वी आर इंडिपेंडेंट। तो एक कदम इंडिपेंडेंस की ओर, और हर महीना अपने आप से पूछो, जिस देवी देवता, ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट, गुरु नानक साहब, जिसको भी माने हम लोग, जिसको, उसके सामने खड़े होके अपने आप से पूछ लो कि हम एक महीने में कितना आजादी प्राप्त, जिनकी गुलामी हम करते थे उस गुलामी से कितना हम दूर। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि एक विद्यार्थी की सबसे बड़ी गुलामी है मोबाइल फोन की गुलामी, सोशल मीडिया की गुलामी। पता नहीं क्यों मेरे पास बच्चे आते हैं, मुझे वो क्या नाम है उसका, इंस्टाग्राम पर, अभी मेरा 6 महीना पहले 10th 9th के बच्चे ने मेरी आईडी बनाई। और आज के बच्चे पैदा बाद में होते हैं, मुझे लगता है पहले पैदा हो जाते हैं इंस्टाग्राम पर, पहले फेसबुक पर पैदा होते हैं, और पता नहीं क्या क्या है। उसके बाद बोलने नहीं आता है लेकिन मोबाइल आता है, पता नहीं आई मुझे, और मुझे समझाते हैं कि इससे पढ़ाई होती है। जो भी टीचर मेरे उम्र के हैं, हम लोग 40 के बीच के जो टीचर्स हैं, हमारे जन्म के समय में मोबाइल नहीं था, लेकिन आज के जो मॉडर्न बच्चे हैं उनसे कम हम लोग नहीं जानते हैं, और आज नो मोबाइल आ रहा है। मोबाइल्स को बैन कर दिया गया, यहाँ भी हम लोगों ने मोबाइल्स को बैन कर दिया, क्योंकि वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब आप चीज़ों को निकाल लेते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। तो क्यों ऐसे चीज़ की गुलामी करें? क्यों डिक्शनरी नहीं पलट के? मोबाइल के फ़ायदे हैं, लेकिन ऐसे भी फ़ायदे नहीं हैं कि आप घर नहीं पहुँचे, 15 मिनट लेट हो गया तो आपकी माताजी, पिताजी, भाई बहन आपको फ़ोन कर रहे हैं। उसके लिए आप जहाँ गए हैं वहाँ भी लोग जिम्मेदार हैं और वहाँ फ़ोन कर सकते हैं। आप इस नाम पर मोबाइल करते हैं, दिस इज बैड। मोबाइल का यूज़ अगर पॉजिटिव है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैंने देखा है कि आप खोलिए तो वाहियात चीज़ें ही आती है और आप स्लिप करते जाते हैं, और एक बार जब ढलान पर कोई चीज़ गिरता है तो परमात्मा ही जानते हैं कि वो कब रेस्ट हो जाए, वो किस तरह गिरेगा, वो कब रेस्ट पड़ जाएगा। नीति आयोग भारत सरकार का डाटा कहता है कि पोस्ट कोविड मोबाइल का बदइस्तेमाल बहुत। सिर्फ मोबाइल को क्यों कहूँ, दूसरा आप गुलाम हैं, आपके पास, आपको आज़ादी चाहिए, आपके विल पावर को जो नहीं है। विल पावर आपको जबरदस्त चाहिए। अगर मुझे करना है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मैं हूं और मेरा एम्बिशन, भाग्य को मेरा साथ देना पड़ेगा। कितनी बार गौरी ने अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान को? 11 बार। यस सर। क्या वो हार गया? हर बार हारता था, और अंतिम बार छल से, कपट से, जो मैं उसकी ओर नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि वो आदमी अपने मिशन में कामयाब हो गया। तो हम लोगों को अगर एक मिशन में कामयाब होंगे तभी आपका परिवार फलित होगा। याद रखिएगा, एक बच्चा नहीं बनता है, एक परिवार बनता है, और उससे एक समाज बनता है। मैंने 24 साल में सैकड़ों बच्चों को और सैकड़ों परिवारों को सड़क पर से घर में, अच्छे घर में, विद्या के बदौलत पहुंचते देखा। तो अगर मेरे समाज में कोई घर बनता है, उससे मेरा समाज मजबूत होता है, और जब समाज मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने कहा है कि 2 काम हैं, एक अपने लिए और एक समाज के लिए। अगर ये 2 काम करते हैं, वी आर रियली डूइंग फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, तभी हेल द मदरलैंड होगा, तभी भारत माता की जय होगी। अन्यथा भारत माता की जय बातों से नहीं।
इरादा को पूरा करने से होगा, इरादों से भी नहीं, इरादों को पूरा करने की से। विद दिस माय हार्टिएस्ट विशेस ऑफ 76th फाउंडेशन इंडिपेंडेंस डे to everyone, and may Bharat Mata bless you to become independent in all walks of your life. Jai Hind, Jai Bharat. Respected Director Sir, Deepam Sir and my dear students. Sir already आप लोग को बता चुके हैं और आज हम लोग 76 इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं और आप लोग ऑलरेडी सर आप लोग गाइड कर चुके हैं कि आप लोग इतना कुछ जो मोबाइल से चीटिंग करके सारे लोग लिखे हैं, कुछ अपना कुछ इंटेलिजेंस वाला जो है वो बिल्कुल किसी ने नहीं लगाया, सब लोग ने उसी को गाइड किया। तो कम से कम सर आप लोग को ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं कि आप लोग उस जो आलस कर रहे हैं और जितना 4 और 5 पॉइंट्स मैंने बताया है वो सबको छोड़ के अपना दिमाग लगाएं। और सर ये भी ठीक कह रहे हैं, आप लोग जब जन्म लिए आप लोग के पास उसके पहले से मोबाइल आ गया, हम लोग जब करते थे तो हम लोग के पास अब आया है, नहीं अपराजित नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सबके पास। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग से ज़्यादा आप लोग को पता है, क्योंकि आप लोग की अगर आप लोग को क्या, मैं अपनी बेटी को ही देखती हूँ, अगर कुछ नहीं मोबाइल दूँ नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, तो आप लोग सब कुछ समझने का भी उसी से कोशिश करते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाते। तो कम से कम उससे अपने आप को स्वतंत्र कीजिए। हम लोग 76 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, अपना एफर्ट लगाइए, अपना सारा कुछ लगाइए, ताकि आप लोग जो इतने लीडर्स का और ये सब का जो सारा कॉपी करके बोले हैं कम से कम कुछ तो उसका पार्ट्स अपने जीवन में भी ला सके और आगे बढ़ सके। ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, वंदे मातरम।